Hello everyone, I'm Priyanka Shine. Welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll start solving exercise 20C from chapter Area and Perimeter of Plane Figures. So starting with question number 1. First question is MCQs and there are 5 MCQs. First one is A. In the given figure, AB equals BC. Angle ABC is equal to 90 degrees. AC is equal to 14 root 2 centimeter. And BPC, that is shaded portion, is semicircle. If pi is equal to 22 by 7, the area of shaded portion is. Don't look at the options. पहले solve करो. Okay. So figure दिया हुआ है. We need to find out the area of the shaded portion BPC. Okay. तो ये जो shaded portion है, it is a semicircle. That is half of the circle. तो area of semicircle क्या होगा? Area of BPC क्या होगा? It will be area of circle divided by 2, right? So area of circle is pi r square. It will be half of that, right? उसके लिए r required है, radius required है. Do we know? No. But I can find out the diameter BC using the triangle ABC. ओके सो डायमीटर मिल गया तो रेडियस इजीली मिल जाएगा, हाफ करना है, दैट्स इट. सो BC कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग द ट्रायंगल. एंड फॉर द ट्रायंगल वी आर गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC. आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऑल्सो राइट एंगल्ड है, हाइपोटेनस दिया है. सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम से आई कैन से AB स्क्वायर्ड प्लस BC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू AC स्क्वायर्ड. ए बी की जगह पे मैं बी सी पुट कर सकती हूँ सिंस आई नीड बी सी का वैल्यू. ओके सो ट्वाइस बी सी स्क्वायर्ड. ए सी का वैल्यू क्या है? 14 रूट 2. तो यहीं पे पुट कर देते हैं. द होल का स्क्वायर हो जाएगा. 14 का स्क्वायर इज 196. रूट 2 का स्क्वायर इज 2. ओके रूट एंड 2 दोनों हट जाएगा, 2 बचेगा. ओके सो 2 कैंसल्ड. BC स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 196, तो स्क्वायर रूट लेके 14 मिलेगा. तो डायमीटर इज 14, रेडियस क्या हो जाएगा? 7, राइट. रेडियस मिल गया, अब एरिया फाइंड आउट करते हैं. सो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर्ड बाई 2 विच इज 22 अपॉन 7 into 7 divided by 2. So that gives 22 into 7 upon 2. ये हाफ हो जाएगा, इंटू करेंगे तो ये इंटू किया तो हाफ हो जाएगा. So 2 11s are 11 into 7 77 squared centimeter. So this is the correct option. So for A, first option is the correct answer. Okay. Next MCQ. B. The diameter of a circle is 14 centimeter. If it is doubled, the perimeter of the resulting circle will become. Perimeter of the circle is nothing but circumference. Okay. So circumference of the circle, how is it related to the diameter? It is pi d. Okay. तो circumference का यहाँ पे diameter से direct relation है. Okay. डायमीटर बढ़ेगा तो सर्कमफेरेंस भी बढ़ेगा, डायमीटर कम होगा तो सर्कमफेरेंस भी कम होगा. तो इफ द डायमीटर इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द सर्कमफेरेंस? इट विल बी डबल्ड. ओके कोई भी कैलकुलेशन का यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे सीधा वही पूछा है कि क्या होगा सर्कमफेरेंस में चेंज. इट विल बी डबल्ड. ओके सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो फॉर बी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, डबल्ड. Now still if you are finding it confusing, क्या करो? दो केसेस कंसिडर करो, ओरिजिनल, न्यू. ओके तो ओरिजिनली लेट्स कंसिडर द डायमीटर टू बी d1, circumference to be c1, then c1 is equal to pi d1, है ना. And for new one, diameter we'll take as d2, circumference as c2. Okay. Now we know that the new diameter is twice the old diameter, है ना. तो D2 will be twice D1. All right. So new circumference will be pi D2
2 है ना, पाई d2 ही होगा. सो d2 इज नथिंग बट 2d1, सो इट विल बी पाई इंटू 2d1 है ना. सो 2 को अगर मैंने बाहर लिया तो पाई इंटू d1, this is nothing but c1. So I can say that it is twice the original circumference. So जब भी diameter डबल होगा circumference डबल होगा, diameter thrice होगा circumference भी thrice होगा. ओके, सो अगर इसको हाफ कर दिया तो circumference भी हाफ हो जाएगा. ऑलराइट, वेरी वेरी इजी, यू डोंट नीड टू डू एनी वर्किंग. एंड यहाँ पे वैल्यू सिर्फ ऐसे ही दे दिया है, यू डोंट नीड टू फाइंड आउट एनी वैल्यू. अगर प्रोवाइडेड वैल्यू फाइंड आउट करना है देन यू नो हाउ टू फाइंड आउट. डायमीटर को डबल कर दो तो 14 की जगह पे 28 हो जाएगा. एंड सर्कमफेरेंस के लिए पाई डी फॉर्मूला यूज करो. ओके, नेक्स्ट MCQ. C, in the given figure, OABC is a square of side 14 centimeter. Taking pi as 22/7, the area of the shaded portion is. Again, don't look at the options. पहले solve करते हैं. So we are given the figure over here. In the figure, OABC is a square, and square का side भी दिया हुआ है. It is 14 centimeter. So each side will be 14, 14, 14, 14. We need to find out the area of this shaded portion. तो ये एरिया मुझे डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा. आई डोंट नो सम फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ शेप, है ना. तो यहाँ पे क्या करेंगे, वील फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ द स्क्वायर फर्स्ट. ये पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड from this area we will subtract this non-shaded portion which is a sector. Okay, OAC is a sector, so area of sector we will subtract from the area of the square. Okay, area of square बहुत easy है. I know the side, it will be side square. What about area of sector? Area of sector is theta upon 360 into pi r square. Okay, sector is nothing but it is a part of a circle. Okay, circle का एक portion हो गया वो. All right, so how will you know if it is a sector? कभी भी ऐसा कोई shape दिया है, okay, then उसमें ये दो sides जो होगा, okay, जो straight वाला sides है, they should be equal. तो यहाँ पे ये दोनों equal है ना, तो वो रेडियस हो जाएगा. एंड द एंगल बिटवीन द टू रेडाई दैट इज थीटा. ओके, तो थीटा पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए. यहाँ पे रेडियस मुझे पता है 14 हो जाएगा. ओके, तो रेडियस मुझे पता है. व्हाट अबाउट थीटा? थीटा भी पता है. ये स्क्वायर है तो ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगा, है ना. थीटा विल बी 90. सो side is 14, theta will be 90, okay, into 22/7 into r is 14, 14 into 14, so this will be 1/4. ये हो जाएगा 7 2s, okay, 2 2s and 2 7s, so 22 into 7 that will give 154, and ये हो जाएगा 196. 196 minus 154 कितना होगा? 42. So this is the answer. Okay, बहुत easy है. So for C, third option is the answer, 42 square centimeter. अगर area of sector नहीं पता है then what you can do in this case? ये 90 डिग्री है, ये तो मुझे पता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो एवरी एंगल इज 90 डिग्री. तो ये जो पोर्शन है ना, फ्रॉम लुकिंग एट इट यू कैन से कि ये एक सर्कल का पार्ट है. ओके, सो इफ यू कंसिडर अ सर्कल, ओके, वी नो सर्कल इज 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री होता है एक सर्कल. सो अगर मैं उसको ऐसे डिवाइड कर दूं सेंटर से 4 पार्ट्स में, ओके, then each portion will have angle 90 degree. तो जब भी 90 डिग्री वाला ऐसा कुछ पार्ट दिया है
then it will be 1/4 of the circle, है ना, क्योंकि this is one part of the all the 4 parts, so this is one part of all the 4 parts and इतना पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, it will be 1/4 of the area of the circle, so it will be 1/4 into pi r square. वही तो हम लोग को यहाँ पे मिला ना, 90/360 is nothing but 1/4. Okay, so it is 1/4 of the area of the circle. Okay, let's read the next one. D, if the radius of a circle is doubled, then its area will become. Now radius and area का relation क्या है पहले वो देखते हैं. तो area is pi r square, है ना, ये फॉर्मूला है फॉर एरिया एंड रेडियस का रिलेशन. नाउ रेडियस को अगर मैंने डबल कर दिया देन इट विल बिकम 2r, द होल थिंग का स्क्वायर. सो एरिया विल बी पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर. सो एरिया विल बी 4 times pi r square, तो 4 times हो जाएगा एरिया. ओके, सो करेक्ट आंसर इज दिस. ऑलराइट, नाउ इतना वर्किंग जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला. ये याद रखो, रेडियस का स्क्वायर करना है बेसिकली. ओके, सो अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया देन डबल मीन्स 2 into 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4. अगर मैंने 3 टाइम्स कर दिया देन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो एरिया विल बिकम 9 टाइम्स. ओके, सो अगर मैंने रेडियस को डबल कर दिया देन 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा. अगर मैंने रेडियस को 3 टाइम्स कर दिया देन 3 का स्क्वायर कर दो 9 टाइम्स एरिया हो जाएगा. ओके, तो रेडियस में जो चेंजेस ला रहे हैं उसके हिसाब से स्क्वायर करके एरिया में चेंज आएगा. ओके, सो अगर मैंने रेडियस को हाफ कर दिया, ओके, देन हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, सो 1/4 एरिया हो जाएगा. ओके, तो रेडियस को अगर हाफ किया तो एरिया विल बिकम 1/4. अगर मैंने रेडियस को 1/3 कर दिया देन एरिया विल बिकम 1/9. ओके, सो वेरी इजी. ओके, सो डायरेक्टली आर को जो भी वैल्यू दिया है जितना टाइम्स कर रहे हैं उसका स्क्वायर कर दो, उतना टाइम्स एरिया में चेंजेस आएगा. ओके, सो फॉर डी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 4 times. ओके, लास्ट MCQ. E, the radii of two circles are 14 centimeter and 28 centimeter. If pi is equal to 22/7, the area of the shaded portion is. बहुत easy है ये. Okay, we need to find out the area of the shaded portion. For bigger circle, the radius is 28 centimeter. For smaller circle, the radius is 14 centimeter. Okay, so all we have to do is area of the shaded portion will be area of this big circle. Let's take this as C1 and this smaller circle as C2. So area of C1 minus area of C2 will give me the area of this shaded portion. ये पूरे एरिया में से इतना एरिया निकालना है. ओके, सो एरिया ऑफ C1 माइनस एरिया ऑफ C2. एरिया ऑफ C1 क्या हो जाएगा, पाई इंटू 28 square. Okay, r squared, so pi into 28 square minus this will be pi into 14 square. So pi को अगर मैंने कॉमन लिया it will be 28 squared minus 14 squared. करेक्ट. यहाँ पे स्क्वायर मत फाइंड आउट करो, इंस्टेड यूज द फॉर्मूला a square minus b square. आइडेंटिटी यूज करो, a minus b into a plus b. Okay, so it will be 28 minus 14 into 28 plus 14. कैलकुलेशन इजी हो जाएगा. ओके, सो वैसे करो, pi is 22/7. ओके,
So 22 upon 7 into this will give 14 and this will be 42. 7 2s are. So this will give 44 into 42. Okay. So यहाँ पे लास्ट में 8 आएगा, 4 2s are 8. So यही वाला ऑप्शन है. Okay. But still calculate. Okay. So you should be getting 1848. अगर दूसरा कोई ऑप्शन होता जिसमें 8 है लास्ट में, then you have to find out. Okay. So यहाँ पे we can easily find out कि 4 2s are 8, लास्ट में 8 आएगा. Okay. So यही वाला एक ऑप्शन है. Okay. So for E, first option is the answer. अगर दूसरा कोई ऑप्शन होता जिसमें लास्ट में 8 है, then you have to calculate. Okay students, then guess work मत करो. Okay. So we got the answer.